So students, we were doing the relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Let me just revise you again, revise the concept again. If I have three numbers A, B, C, if they are in AP, then B is the arithmetic mean. Then B is the arithmetic mean, and that is equals to A arithmetic mean of the numbers A and C. Okay, so B is the arithmetic mean, and we write arithmetic mean or only A. That's the same thing. So B is the arithmetic mean. If it's arithmetic progression, then arithmetic mean. If A, B, C are in geometric progression, then B is your geometric mean. Okay, so arithmetic progression, arithmetic mean. Geometric progression, then B is your geometric mean, and that's equals to under the root AC, that is your geometric mean, and we write simply it as a G. Okay, and then we have harmonic mean, and see AB here ABC were in GP, and harmonic mean ABC are means harmonic progression, ABC are in harmonic progression. So harmonic progression, A, B, C are in harmonic progression. So what does this mean, students? If A, B, C in harmonic progression, tell me what does this mean? Sir, 1 by A upon 1 by B and 1 by C is in AP. Very good, excellent. Thank you, Anshita. So absolutely, students, this is what does this mean, and now you can proceed with the formulas of your AP. Okay, what you know the formulas of AP. Now I told you that if they are in HP harmonic progression, then B will be your harmonic mean, and what is the value of B? Sir, 2AC upon A plus C. Very good, very good. Thank you so much. So that is equals to your harmonic mean, and in short we write it as H. Okay, students, and we can also write this harmonic mean as this H as of, you want to write it for A and C, suppose, so that will be equal to 2 divided by these two numbers. So 2 divided by this, so these are two numbers whose harmonic mean we are finding. So we are finding harmonic mean of any two numbers A and C. So two numbers divided by sum of their reciprocals. So write their reciprocals and then add their reciprocals. So if I want to write journal form of arithmetic mean, suppose I have n numbers up to n, so A1, A2, A3, A4 in AP, so or even if they are not in AP, doesn't matter. Then if we have these numbers, then I will write their arithmetic mean as this. I will write their geometric mean as the product of these numbers and then the nth root. And how will be I write the harmonic mean, students, for this case? N upon 1 by X1, 1 by X2. Okay, if you are So take, okay, 1 by. yes, 1 by x1 plus 1 by x2 plus, so reciprocal of the numbers and then adding them. Very good. So students, now if you have the same numbers, suppose these same numbers A, B, C, then, and you are finding the arithmetic mean of these three numbers A, B, C, or you can say you have the numbers X, Y, Z. Let's don't get confused. You have three numbers X, Y, Z, so their harmonic mean will be X plus Y plus Z divided by 3, and their geometric mean will be cube root of X, Y, Z. And what will be their harmonic mean? 3 upon 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. Very good. And student, this can be written as 3 into, ek to whatever be there as LCM in the denominator, it will be multiplied, first thing. Okay, second thing, now here I have x, so I will be multiplying and divide this by yz.
Here I have y, so xz, and here I have z, so xy. Okay. Yes, sir. So for two numbers, Yes. it will be 2 multiplied by the two numbers and then divided by their sum. But if there are three numbers, then 3 multiply their product and then dividing with the combination of their means product of 2 at a time. Okay. Yes, sir. Students, note it down. Now there is very famous inequality, which is, so tell me students, which one will be the greatest out of these three? Arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Yes. Arithmetic mean. Arithmetic mean. Very good. Arithmetic. Arithmetic mean will be the greatest, and then comes the, Geometric mean. Geometric mean. and then comes the, Harmonic mean. yes. So students, if these three numbers are equal, x equals to y equals to z, then arithmetic mean equal to geometric mean equal to harmonic mean equal to x equal to y equal to z. And if they are unequal, then arithmetic mean will be greater than geometric mean and greater than harmonic mean. Students, are you comfortable with this concept? Yes, sir. So have you noted it down? Yes, sir. Done. Okay. Yes, sir. Okay, good. Please, sir. Okay, thank you. So students, let us do a question which was in JEE mains exam, JEE advanced. Okay, so let us do that question now based Sir, on this please concept. wait. Yes. Please wait for. Okay. Rest of you can just revise the concept. Okay. So this is, let me make a boundary sir. where you have to note down, this is my boundary, this is the boundary. Okay. This is the boundary. Done, students? Yes. Yes, sir. Shall we move forward? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Okay. So, students, please be comfortable, and wherever you are feeling, monotonous or you are not able to understand, please tell it to me. I will explain it again. Okay. Okay, students. Let us do this question. It was in 2007 JEE Advanced. So students, what is given to you? A1 G1 H1 denote the arithmetic, geometric and harmonic means of which numbers? Of two distinct positive numbers. So he has not given you the numbers, so you have to assume the two numbers yourself. So let the two numbers be A and B. So what are the two numbers? A and B. And what is their arithmetic mean? A plus A1. B by 2. A plus A1. B upon 2. Yes, A plus B by 2. Very good. What is their geometric mean? Under root Under AB. root AB. Under root Very AB. good. So G1. So this is where I have written. These are the two numbers, and their arithmetic mean is A1. A1 equal to AB by 2. G1 equals to G under the root AB. And what is their harmonic mean? H1 equals to, students. 2AB 2AB upon A upon plus B. Upon A plus B. Very good. So now this was my first condition, and I have used my first condition over here. Now what's your second condition, students? Second condition is for n greater than equal to 2. Okay. So for n greater than equal to 2, an1 and hn1 have arithmetic, geometric and harmonic means as an, gn, hn. So let us write it in the same way, students. See, question आपको एग्जाम में वो किसी भी फॉर्म में बात को he will keep the things turning around, but you have to write it in the same way so that you can compare the things. So here you have written A1, G1, H1 are the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of A and B. So now you will be writing that AN, GN, HN are the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of
Which number, students? A n plus 1, oh sorry, a n minus 1 and h n minus 1. Is this clear? So write it down. Leave some space for the question and then writing down the solution. First condition we have already written, and this is the second condition that I am writing. For n greater than equal to 2, an, gn, hn are the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of a n minus 1 and h n minus 1. Now let us put n equals to 2, students. Okay, so what do you get? Tell me. Beta, put n equals to 2. What do you get? A2, G2, H2 are the arithmetic, geometric and harmonic means. Yes, sir. So students, this was my question. Let us discuss it again. It was given that A1, G1, H1 denote the arithmetic mean, geometric mean and harmonic means respectively of two distinct positive numbers. So I have assumed the two distinct positive numbers and A and B. So A1, G1, H1 are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of A and B. Am I clear? First condition is clear. So this was the first Yes. condition. Now the Yes. second condition starts from here. For n greater than equal to 2. So right here, for n greater than equal to 2, a n minus 1 and h n minus 1 have arithmetic. So now he has given the numbers first. In the first line he has written the numbers at the end. Now he has given the numbers at the beginning. But we have to write it in the same way. So we have to write what are the arithmetic, geometric and harmonic means, like we have written in the first condition. So a n minus 1 and h n minus 1 have, so these are the numbers, students, this time. A1, a n minus 1 and h n minus 1 are your numbers. Okay, and their arithmetic, geometric and harmonic mean is an, gn and hn. So let us write it in the same way. An, gn, hn are the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of the numbers a n minus 1 and h n minus 1. Am I clear, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So put n is equal to 2 in the second condition. What do you get? A2, A2, G2, G2, H2 of A1 and H1. N is Are equal to, the- yes. So put n is, so A2, G2 and H2 are the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of A1 and H1. Okay. Is this clear, students? So in the same manner you will get A3, G3, H3 are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. So this time you have put n is equals to 3, students. Of, tell me, what do you get? A2 and H2. A2 and H2. So these are numbers on this side, students. Okay. These are the numbers whose arithmetic mean and harmonic mean and geometric mean you are finding. So these are numbers this side and we have written means on this side. Is this clear? So student, this Yes, question sir. has 3 parts. You have to compare A1, A2, A3. Which one is highest and what's the, means A1. So you have 3 choices. A1 is greater than A2, greater than A3 and so on. Or A1 is lesser than A2, is lesser than A3 and so on. And A1 is greater than A3, greater than A5. And
A1 is less than A3 and less. So we have to find the relations between A1, A2, A3, A4. Which one is, what is there? Are they in ascending or descending order? Same we have to find for G students, and same we have to find for H. H1, H2, H3, H4 and so on, and G1, G2, G3 and so on. Okay? Yes, sir. Okay, good. So students, we have already written from AB. If the numbers are AB, then their arithmetic mean was A plus B by 2, which is A1, and G1 is equals to under the root AB, and H1 is equals to 2AB upon, which is condition number 1. Okay. Now tell me what will be your G2. G2 is geometric mean of A1 and H1. Yes? Yes, sir. So it means you can write G2 is equals to under the root A1 H1. A1, H1. Yes, right. Agreed. Yes, sir. Now put the values of A1 here and H1 here, students, and solve it. What do you get, students? Under the root AB. Under root AB. Absolutely correct. So what is under the root AB? G1. 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 So it- Geometric mean. Yes, geometric mean of A and B. So it means G1 is equals to G2. G2 is equals to G1. Yes? Yes, sir. So similarly, G2 will be equal to G3 and so on. Agreed? Yes, sir. So it means this third option, G1 equals to G2 equals to G3, is correct. Yes, sir. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमने पिछले इन द लास्ट 5 क्लासेस वी हैव डन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस, और वो क्वेश्चंस हमने कितने आसान बना दिए हैं. हमारा करने का ढंग ऐसा था, हमें लगा ही नहीं कि ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है. नॉर्मल ये क्वेश्चन भी जैसे सीबीएसई के लेवल से भी नीचे है, ऐसे हमने इन क्वेश्चंस को किया है. इजंट इट? Yes, sir. तो इफ यू हैव स्किप्ड प्रीवियस क्लासेस, तो आप पीछे के जो वीडियोस हैं स्टूडेंट्स वो देख सकते हैं. ओके, चलिए अब हम आते हैं जी. तो क्लियर हो गया. अब एच को कंपेयर करते हैं और एज को कंपेयर करते हैं. ठीक है, चलिए अब नंबर लाइन पे आ जाते हैं हम स्टूडेंट्स. ये हमारी नंबर लाइन है, आपको पता है. इस तरफ यहां हमारा इधर कहीं ओरिजिन होगा और इधर ये हमारी एक्स एक्सिस है. ओके, Yes, sir. तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम जैसे जैसे राइट में मूव करते हैं नंबर्स बड़े होते जाते हैं. डू यू एग्री? Yes, sir. और स्टूडेंट हमने जो है ना ए और बी ऐसे नंबर्स लिए हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं. आपको पता है कि बी बड़ा है और ए उससे स्मॉलर है. ओके, सो वी हैव टेकन द नंबर्स ए एंड बी सच दैट बी is, so see this is I have written it opposite way, students. I have written it opposite way. उल्टा लिख दिया ना मैंने इसको. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये ध्यान. Yes, sir. स्टूडेंट्स ये थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ. इट्स कम्स विद एज. तो कई बार चीज़ों को जो है ना मैं थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ कर देता हूँ, तो प्लीज़ मुझे जो है ये ध्यान दिलाते रहें. ठीक है, और उसी से हम बता दें सर ये यहाँ ये लिख दिया. ओके, चलिए. Okay, sir. हाँ, तो बेटा B जो है वो बड़ा नंबर है, A छोटा नंबर है, और दोनों के दोनों नंबर 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव नंबर्स. ओके, चलिए अब आप मुझे बताइए कि अगर आप इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, डेट इज
ए और बी का अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट कंडीशन है हमारी A1 एंड देन ज्योमेट्रिक मीन G1 एंड हार्मोनिक मीन H1। तो मुझे बताइए ये दोनों अलग नंबर्स हैं, तो इनमें कौन बड़ा होगा, सबसे बड़ा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन? Arithmetic mean. एंड देन फर्दर ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। एग्रीड? Yes, sir. Yes, तो sir. मैं इनको कहां लिखूं स्टूडेंट्स? इस नंबर लाइन पे जो सबसे बड़ा है वो मैं इधर लिखूंगा नंबर लाइन पर, ग्रेटेस्ट, और Yes, इधर sir. क्या लिखूंगा? Yes, sir. स्मॉलेस्ट। Smallest. हार्मोनिक मीन Small. इधर लिखूंगा और अर्थमेटिक मीन इधर लिखूंगा, और ज्योमेट्रिक मीन कहां आएगा स्टूडेंट्स? Between them. सर बीच में। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली। तो ये तो थे आपके नंबर्स ए एंड बी। कौन से नंबर्स थे स्टूडेंट्स? A A and and A and B। A and B. अब आपके जो नंबर्स हैं, जो ये थे आपके नंबर्स ए एंड बी, ओके। अब आपके जो नंबर्स बन गए हैं वो बन गए हैं A1 एंड H1। क्या बन गए हैं? A1 and H1. A1 and H. तो इसी नंबर लाइन को एक बार और बना लो, या पिछली नंबर लाइन में भी लिख सकते हो, नई बनाने की भी जरूरत नहीं है, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको नई बनाई है। अब आपको A1 और H1 के अर्थमेटिक मीन क्या है? A2, G2 एंड H2, है ना? सेकंड Yes, sir. कंडीशन, agreed students? A2, G2 and H2 are arithmetic, geometric and harmonic means of numbers H1 and A1। agree हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो आप मुझे बताइए कि जो मेरा इनमें बड़ा कौन सा होगा? अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होगा, देन ज्योमेट्रिक sir. एंड देन हार्मोनिक विल बी द स्मॉलेस्ट। एग्रीड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो बड़े Yes, नंबर को sir. कहां लिखते हैं स्टूडेंट्स? ऑन द एक्सट्रीम राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो ये A1 से तो छोटा ही होगा ना, क्योंकि ये मीन है, ओके। Okay, sir. हाँ, तो कहां आएगा? ये A2 आ गया, उसके बाद Between G2, A2 and G. और उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट H2। यस स्टूडेंट्स, एग्री हैं या नहीं है इस बात से? यस सर। Yes, sir. और ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, G1 इज इक्वल टू G2, तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल एट द सेम पोजिशन है स्टूडेंट्स। और ये H1 मैंने बिल्कुल सेम पोजिशन पे बनाया था नीचे, और A1 भी सेम पोजिशन पे है। तो अब आप मुझे बताइए, अब इसी तरीके से आपका अंदर जाएंगे तो A3 यहां आ जाएगा और H3 यहां आ जाएगा। एग्रीड और नॉट एग्रीड? Agreed. और फिर आपका A4 आ जाएगा और फिर आपका H4 आ जाएगा। एग्रीड? Sir, Yes, sir. why A3 and A4 become smaller than A2 and A1? बेटा सेम वे, जैसे आपका ये सेम पैटर्न चलेगा, जैसे आपका A3, G3 और H3। चलिए इसको मैं लिखता हूं, अब आपके नंबर्स हो गए हैं स्टूडेंट्स H2 एंड A2। कौन से नंबर हो गए हैं? H2 and A2. तो स्टूडेंट्स इनके अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? A3, और इनका Yes, ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा? G3, और हार्मोनिक मीन क्या आएगा? H3। किसका? H2 और A2 का। A2. तो मुझे बताइए सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा इनमें? A3? यस? Yes, sir. यस सर। तो A, क्योंकि दोनों नंबर्स कौन से हैं हमारे? A2 और H2, तो इसीलिए जो A3 है वो A2 से तो छोटा ही होगा। यस? Yes, sir. तो इसीलिए A3 कहाँ आएगा? यहां पर आएगा। Yes, sir. और G3 कहाँ आएगा? जहां G2 है, क्योंकि सारे G सेम है।
Yes, sir. और H3 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? अब क्योंकि मेरे दो नंबर हैं A2 और H2, तो इनसे बाहर नहीं जा सकते, ये मेरी बाउंड्री है दोनों, जो दो नंबर्स मेरे होते हैं, जैसे A और B नंबर था, ये मेरी बाउंड्री थी और मीन्स इनके बीच में आए। उसी तरह अगली बार H1 और A1 मेरे दो नंबर्स थे और A2 G2 H2 इनके बीच में आए। अब मेरे दो नंबर्स हैं A2 और H2, तो जो इनके मीन्स आएंगे A3 G3 और H3, वो इन दोनों के बीच में आएंगे स्टूडेंट्स। ओके सर। एग्री हैं बात से? Yes, sir. Clear. Yes, sir. अब इसी तरीके से आपके दो नंबर बन जाएंगे A3 और H3, और इनका जो मीन आएगा A4 वो यहां आएगा, और इनका जो मीन आएगा H4 वो यहां आएगा स्टूडेंट्स, और G4 तो वहीं आएगा जहां G सारे हैं। एग्रीड? यस। एक्सक्यूज मी सर, Yes. यस बेटा, यस यस। अगर हम इस कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो ऐसी कंडीशन भी अराइज हो सकती है कि जब ये G को क्रॉस करे, क्योंकि G1 G2 तो सेम रहेंगे। नहीं कर सकते And क्रॉस, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखिए अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, और हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि A1 G1 G2 G3 ये सारे सेम हैं, ओके सर। तो इसलिए कभी क्रॉस नहीं करेंगे। ये G की तरफ मूव करता रहेगा धीरे 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 धीरे, लेकिन कभी भी ये G तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरह H भी मूव करते रहेंगे G तक, छोटे होते चले जाएंगे, छोटे होते चले जाएंगे, लेकिन कभी भी G तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो A's will be approaching G and H will also be approaching G, but they will never be equal to G। तो स्टूडेंट्स हमें बताना था कि आप मुझे बताइए अब A1 A2 A3 इनके बीच में और H1 H2 H3 इनके बीच में हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, तो आप मुझे बताइए कौन सा ऑर्डर बनेगा इनके बीच में? A1 into A3 descending और H1 H2 H3 ascending. असेंडिंग। वेरी गुड। तो ये जो है, ये जो A1 है वो मेरा ग्रेटेस्ट था, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर बनता चला गया, और H1 H2 H3 में असेंडिंग ऑर्डर बनता चला गया। तो स्टूडेंट्स यही मेरा क्वेश्चन था, तो अब आप इसमें से बताइए कौन सा पार्ट करेक्ट है, A, B, C या D? ए पार्ट Sir, इन द A. फर्स्ट वन। A. A A पार्ट। part. A1 सबसे ग्रेटेस्ट था, बिल्कुल ठीक है, और बाकी फिर उससे छोटे B होते चले part। गए। और अगले में बता, अच्छा हम कर चुके हैं, नहीं A पार्ट है ना बेटा, देखो A आपका सबसे ग्रेटेस्ट था, यहाँ पर Sir, I am A1, telling तो the फिर next उससे one। A2 फिर A3। ओके, अच्छा आप अगला बता रहे हैं, ओके समझ गए ना? ये नंबर लाइन दोबारा बना लीजिए, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, उसके बाद G में तो आपके इक्वल आ गए थे, H में बताइए, ये आपका ध्यान है, ये आपका H1 था, ये आपका H2, ये आपका H3 और ये आपका H4। तो बताइए इसमें क्या था रिलेशन, A B C D कौन सा आएगा? B. B part. B पार्ट, वेरी गुड। तो ये आपका H1 है और H2 उससे बड़ा हो गया और H3 उससे बड़ा हो गया एंड सो ऑन, सो दिस इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड थे, लेकिन आपने लॉजिकली जो है ना इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट्स वी आर लर्निंग लॉट ऑफ मैथ्स एंड लॉजिक। ये लॉजिक आप जो मैंने बताया था, जब आप जॉब्स के लिए एग्जाम देंगे तो 3 चीजें हर जॉब में आती हैं। पहली चीज इंग्लिश, दूसरी चीज मैथ्स, और तीसरी चीज आती है रीजनिंग, लॉजिकल एप्टीट्यूड। ये 3 चीजें हर एग्जाम में आएंगी, और अगर ये 3 चीजें आपको आती हैं तो आप हर जॉब के लिए क्वालिफाइड हैं, चाहे वो आईएएस है और चाहे वो जो है आपके ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम वही चीज कर रहे हैं, लॉजिक भी कर रहे हैं, मैथ्स भी, और एक मैंने आपको बताया था इंग्लिश की क्लास जरूर अटेंड करो। चलो अब हम इसी क्वेश्चन को एल्जेब्रिकली सॉल्व करें। ये तो हमने नंबर लाइन पे सॉल्व किया है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, तो जब एल्जेब्रिकली करेंगे तो और मजा आएगा। करें एल्जेब्रिकली? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए
और स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान होगा 2-3 स्लाइड्स पहले मैंने आपको बताया था आरएमएस जो है वो सबसे बड़ा होता है रूट मीन स्क्वायर। ये क्या होता है, आप सबसे पहले स्क्वायर करो ए और बी का, उसके बाद स्क्वायर करने के बाद उनके मीन निकालो, ऐड करके 2 से डिवाइड करो और फिर उनका अंडर दी रूट कर दो, तो इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। ये आपका काम आएगा जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आरएमएस काम आएगा, लेकिन समझ रहे हैं, तो आरएमएस रूट मीन स्क्वायर ये एक और मीन है। तो 4 तरह के मीन हो गए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और फोर्थ है आरएमएस रूट मीन स्क्वायर। तो बहुत आसान है, उल्टा चलो, पहले स्क्वायर करो नंबर्स के, उसके बाद उनका मीन निकालो, जितने स्क्वायर उतने नंबर से उसको डिवाइड करो, मीन निकालो। मीन, अर्थमेटिक मीन और मीन एक ही मतलब होता है स्टूडेंट्स। मीन निकालने के बाद फिर उनका रूट कर दो। ओके, चलो, तो ये आपने एक और मीन भी समझ लिया। ये डन स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब यही क्वेश्चन है आपका। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? Algebraical. तो दो नंबर्स हमने माने, लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी विद सी। ये कंडीशन फिर से गलत लिख दी हमने। यहां पर क्या आएगा बताइए? सबसे बड़ा नंबर कौन सा था? नंबर लाइन बनाई थी ना बेटा? हाँ, सर बी था सबसे बड़ा। बी था सबसे बड़ा। हाँ, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा था? बी। यस सर। ऐसे बनाया था नंबर लाइन पे हमने। तो Yes, कैसे sir. लिखेंगे इसको, Yes, sir. कंडीशन को? 0 ले यस सर। ठीक है, तो यहां इसका Yes. मतलब ये ठीक लिखी हुई थी हमने, गलत नहीं लिखी हुई थी, ये भी ठीक लिखी हुई थी। ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड स्टूडेंट्स? Yes, sir. देखिए, फर्स्ट कंडीशन तो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है। H1 इज इक्वल्स टू 2AB अपॉन A प्लस बी, G1 इज इक्वल्स टू अंडर द रूट AB और A1 इज इक्वल्स टू A प्लस बी बाई 2 और G2 आपने कैलकुलेट किया था, डेट इक्वल्स टू G1 एंड दिस सिमिलरली वी कैन प्रूव G3 इज इक्वल टू G2 एंड सो ऑन। तो ये तो जो आपका पहला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, इतना तो सेम है स्टूडेंट्स पीछे तक का। ओके, Yes, sir. अब कंडीशन 2 पर आते हैं। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, an, gn एंड hn आर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ an माइनस 1 एंड hn माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, हम पहले डिस्कस करेंगे सीक्वेंस a1, a2, a3 एंड an कि ये असेंडिंग सीक्वेंस है या डिसेंडिंग सीक्वेंस है। ओके, Yes, sir. तो बताइए मुझे ए एन किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? ए एन इज इक्वल्स टू, इसके अकॉर्डिंग ए एन किसके इक्वल होगा बताइए? अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू नंबर्स। यस सर। यस सर। उसमें स्टूडेंट्स हमने एन की वैल्यू पुट कर दी थी, लेकिन अब हम एन की वैल्यू पुट नहीं कर रहे, हम एक जर्नल केस लेकर चल रहे हैं। तो ये उससे ज्यादा अप्रोप्रिएट है ये आंसर। ओके, Yes, sir. वो क्विक सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स एमसीक्यू के लिए, और ये जो सॉल्यूशन है ये आपका सीबीएसई के लिए या वैसे भी दिस इज मोर लॉजिकल सॉल्यूशन। इसमें हम जर्नल केस लेके चल रहे हैं। ओके, कोई भी नंबर हो ए एन, तो दैट नंबर विल बी अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एन माइनस 1 एंड एच एन माइनस 1। इज दिस क्लियर? डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट स्टूडेंट्स? यस सर। Yes, sir. चलिए, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. तो व्हाट डू आई गेट? 2an इक्वल्स टू
an-1 प्लस hn-2। बहुत आसान सी बात है स्टूडेंट्स ये। Yes, sir. तो इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लीजिए। ऊपर g1 इक्वल्स टू g2 इक्वल्स टू g3 को हमने इक्वेशन नंबर 1 माना है, तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, नाउ टेल मी, जो आपने hn-1, gn-1 और an-1 था, ये किन के मीन थे? ये जो मीन है an-1, hn-1 और इन्हीं नंबर्स का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो वो क्या आएगा? gn-1। ओके, यस सर। तो स्टूडेंट्स हमने लिखा है hn, इनमें कौन सबसे बड़ा होगा? अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन और सबसे छोटा हार्मोनिक। Harmonic mean. बस, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की, और ज्योमेट्रिक तो हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए अब हम कंपैरिजन लेंगे an और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों में से कौन सा बड़ा होगा स्टूडेंट्स? अर्थमेटिक मीन। Arithmetic. तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में स्टूडेंट्स, और क्या करेंगे? यहां पर जो आपका hn-1 है उसकी जगह अगर मैं an-1 रख दूं, अगर इसकी जगह आप इससे बड़ा नंबर यहां रख देंगे तो क्या वो बड़ा नहीं हो जाएगा? यस सर। यहां आपका hn-1 था और मैंने hn-1 से बड़ा नंबर है an-1, अर्थमेटिक मीन बड़ा है, तो मैंने हार्मोनिक मीन की जगह क्या रख दिया? अर्थमेटिक मीन। ओके, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? ये यस सर। यस Yes. सर। Sir, please explain it again. ओके ओके, कोई इशू ही नहीं है, बिल्कुल भी, आप बता दिया करो बस। देखो स्टूडेंट्स, हमने यहां पर 2an इज इक्वल टू an-1 प्लस hn-1 ये हमने लिखा था। Yes, sir. यहां से an इज अर्थमेटिक मीन, ये हमारी सेकंड कंडीशन है, an इज अर्थमेटिक मीन ऑफ an-1 एंड hn-1। ओके, तो an इज इक्वल टू hn-1 प्लस an-1 प्लस hn डिवाइड बाई 2, और ये 2 इधर जाकर क्या हो गया? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 2, तो ये हमें मिल गया। लेकिन स्टूडेंट्स हमें जो सीक्वेंस है उसमें हमें इनइक्वालिटी चाहिए। क्या चाहिए? इनइक्वालिटी, पहली बात। तो इनइक्वालिटी को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? और दूसरी चीज, मुझे यहां से 2 हटाना है। 2 काम है मेरे, 2 काम कौन से हैं स्टूडेंट्स मेरे? इंट्रोड्यूस इनइक्वालिटी एंड रिमूव 2। हाँ बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी कैसे लेकर आएंगे? इनइक्वालिटी इक्वेशन हमारे पास है, an से रिलेटेड इनइक्वालिटी, तो an-1 विल बी ग्रेटर देन hn-1। तो इन दोनों को हमने कंपेयर कर लिया और यहां से इनइक्वालिटी आ गई। और अब ट्वाइस करने के लिए इस तरफ ट्वाइस हम कैसे कर सकते हैं? जब हम hn-1 की जगह an-1 रख दें। आप मुझे एक बात बताइए, यहां देखेंगे अब, ये मेरा 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1। एग्री है स्टूडेंट्स इस बात से? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं लिख दूं an+1, अगर मैं 1 को उससे बड़े नंबर से रिप्लेस कर दूं, 1 को रिप्लेस कर दिया उससे बड़े नंबर से, 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, तो बड़े नंबर से रिप्लेस कर दिया, तो क्या यहां इनइक्वालिटी ग्रेटर देन का साइन नहीं आ जाएगा स्टूडेंट्स? Yes, sir. आप एग्री हैं इस बात से? यस सर। Yes, sir. तो मैंने वही किया है, यहां hn-1 को इससे बड़े नंबर से, जैसे यहां 1 से बड़ा नंबर 2 था, तो hn-1 को उससे बड़े नंबर से रिप्लेस कर दिया, और उससे बड़ा नंबर है अर्थमेटिक मीन an-1, तो hn-1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? an-1, उससे बड़ा नंबर। तो जैसे यहां पर ये था पहले आपका 3 प्लस 1, यहां था 4, और अब मैंने लिख दिया इसको 3 प्लस 3, ऐसे लिख दिया,
क्योंकि an माइनस वन क्या 3 है, और 3 बड़ा है किससे, 1 से, ये 3 है और ये क्या है 1। बताइए एग्री हैं या नहीं। यस सर। तो यहां इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा यहां पर, बिकॉज 3 + 3 6 इज ग्रेटर देन 3 + 1 4। नोट डाउन कर लो आराम से। सर ये लेस देन का साइन आएगा या फिर ग्रेटर देन का आएगा? बेटा आप बताओ मुझे, ये साइड ग्रेटर है ना, ये साइड ग्रेटर है हो गई ना, 3 + 3 6 हो गया ना। सर वो तो क्लियर है, लेकिन ओके सर। आप आराम से लिखो, देखो ये बहुत इजी मैथ्स है, हम लॉजिकली कर रहे हैं कि भाई एक्चुअली हमें क्यों करना है। तो आप जब क्वेश्चन कर भी लो ना मैथ्स का, तो आप सोचा करो कि मुझे पहुंचना कहां था और वहां पहुंचने के लिए विच टूल्स आई हैव यूज्ड। यस सर। हाँ, तो लॉजिकली सोचा करो, बैक जाया करो, सॉल्यूशन निकालने के बाद फिर से क्वेश्चन की तरफ मूव किया करो कि ये चाहिए था उसके लिए मैंने ये किया, ये चाहिए था उसके लिए मैंने ये किया, ये चाहिए था उसके लिए मैंने ये किया। तो ये टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था भाई 2 को मुझे हटाना है, तो इसके दोनों तरफ अगर 2 होगा तो मैं डिवाइड कर सकता हूं। दूसरी बात, मुझे इनइक्वालिटी का साइन चाहिए था, तो कैसे इनइक्वालिटी का साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट। आप उसको उससे बड़े नंबर से रिप्लेस कर दो तो वो इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। सर Yes. बट सर जो आपने इक्वेशन 4 मार्क करेंगे वो सर वो समझ नहीं आई थोड़ी सी, n की वैल्यू पुट करेंगे तो वो लेस देन कैसे होगा? देखो मैं आपको दोबारा से समझाता हूं, ये आपका यहां पर an जो था अर्थमेटिक मीन है, ये सेकंड कंडीशन गिवन है, an इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ an+1 एंड hn+1। तो अर्थमेटिक मीन है, तो इन दोनों नंबर्स को, 2 नंबर्स है, दोनों को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, जो कि अर्थमेटिक मीन है, गिवन है an। क्लियर? यस सर। उसके बाद 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास आ गया 2an + an-1 + hn-1। एग्रीड? लिखते रहिए नोटबुक में। सर ये यहाँ तक तो सर समझ आ गया, बट सर जो ये आपने इक्वेशन 4 मार्क करी है a1 इज लेस देन a2, अच्छा सर अच्छा greater अच्छा, than यहाँ पहुंच नहीं गए होना आप। चाहिए। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, चलिए एक बार दोबारा से ऊपर से ही करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट मैं यहाँ आपको पता है अर्थमेटिक मीन जो है वो ग्रेटर होता है हार्मोनिक मीन से। क्या होता है अर्थमेटिक मीन? ग्रेटर देन हार्मोनिक। तो मैं यहाँ अर्थमेटिक मीन लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? अर्थमेटिक मीन। नहीं सर ये स्टेप तो सही था। ओके, यहां तक समझ आ गया आपको? यहां तक आ गया समझ में? यहां तक आ गया? यस सर यहाँ तक आ 2 से 2 कट गया। यस सर। तो an-1 इज ग्रेटर देन an हो गया ना बेटा? वहां पर क्या आया था आपका अर्थमेटिक मीन? a1 a2 a3 ऐसे आया था ना आपका? यस, यहां आपका g था। तो an सबसे छोटा होगा ना, और जो an-1, तो यही सीक्वेंस तो लिख रहे हैं हम, नहीं लिख रहे क्या? सर n-1 बड़ा होना चाहिए था, तो सर अरे मान लो मेरी अच्छा n की सुनो। वैल्यू 2 डालते हैं। अच्छा सुनो बेटे, इसका तरीका है, n की जगह आप पुट कर लो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n की जगह 2 पुट करो। चलो क्या मिला आपको बताओ। चलो सर a2 इज लेस देन a1। n इज इक्वल टू 3 पुट करो बेटा। सर बट आपने
इक्वेशन नंबर 4 में तो कुछ और लिखा हुआ है ना। बेटा यही तो लिखा, देखो सुनो, A1 सबसे बड़ा, उससे छोटा A2, A2 से छोटा A3, देखो। अच्छा ये तो फिर साइन उल्टे लगेंगे ये आंसर में। यस, ये मैंने ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, ये ऑर्डर जो है वो उल्टा लिख दिया है, यू आर राइट। सो A1 यहां भी दिख रहा है कि A1 ग्रेटेस्ट है, यस। तो ऑफ कोर्स ये साइन उल्टे लग गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो देख ही रहे हैं कि भाई A1 इज ग्रेटर देन A2 एंड A2 इज ग्रेटर देन A3, तो A1 ग्रेटेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, यस सर, वो कंफ्यूज हो गया था सर, डाउट हाँ यस, थैंक यू सो मच। आप कंफ्यूज नहीं हुए, लिखा गलत हुआ था तो इसीलिए लॉजिकली जब आप सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मैच करेगा ही नहीं। तो यही चीज आपको लाइफ में देखनी है। तो आप जो है ना, अब आप बता सकते हैं जब लॉजिकली काम करते हैं तो इवन बुक में कहाँ पर मिस प्रिंटिंग है या टीचर ने कहाँ पर जो है वो गलती से रिवर्स लिख दिया है, तो बस अब आप जो है लर्नर बन गए हैं, सही लर्नर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कौन सी सीक्वेंस हो गई? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस हो गई? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एग्रीड। तो 10 सीक्वेंस A1 A2 A3 अप टू AN इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए अब जल्दी से इसका अगला पार्ट कर लेते हैं। तो जी तो हम प्रूव कर चुके डिक्रीजिंग का क्या हैं। मीनिंग होता है G1, यस बेटा। सर? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का क्या मीनिंग होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब है कि बीच में कोई भी ना इक्वल वाली टर्म आएगी ना ग्रेटर वाली टर्म आएगी। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मीन्स देयर इज नो इनइक्वालिटी, देयर इज नथिंग, all the terms will keep on decreasing. So this is the meaning of strictly decreasing. ओके सर। So students, G1 G2 G3 this we have already done. अब उसके बाद अब हमें कंपेयर करना है सीक्वेंस जो है वो HNs की, ठीक है। तो AGH जो हैं दे आर इन GP। AGH अगर GP AGH जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, दे आर ऑलवेज इन GP। ये एक रिजल्ट है, अगर नहीं बताया तो यहां से देख लो। ये एक रिजल्ट है जो एक नई चीज आपके लिए जो नोट करनी है आपको। आप जब AGH निकालते हैं तो वो तीनों किस में होते हैं? GP में। A सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा G और फिर उससे छोटा H। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये तीनों नंबर्स किस में हैं? GP में। तो अगर आप G अपॉन A निकाल लेंगे, H अपॉन G निकाल लेंगे तो वो आपकी एक कॉमन रेशो आएगी R। मैं आपको बताऊं, आप निकाल कर देख लेना अपने आप से। ओके ओके सर। तो इसका अगर ये GP में है तो इसका मतलब G क्या हो गया? A और H का ज्योमेट्रिक मीन हो गया। Yes, sir. तो G इज इक्वल टू अंडर द रूट AH लिख सकता हूं मैं, नीले लिख सकता। Yes, sir. तो जनरल टर्म क्या बनेगी? GN इक्वल्स टू अंडर द रूट AN HN। एग्रीड? Yes, sir. तो स्टूडेंट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा? GN स्क्वेयर इज इक्वल्स टू AN HN। और HN किसके इक्वल आ जाएगा? GN square by AN. इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 5। आपको HN कंपेयर करना था तो HN को यहां ले आए। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी और भी इंट्रोड्यूस करने का क्या तरीका होता है स्टूडेंट्स? ये बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं। आप इसे एक बार दो बार करें, समझें, और बहुत जगह ये यूज होने वाला है आपके साथ लाइफ में। चलिए अब आप देखिए कि AN किस में, अभी हमने ऊपर लिखा था AN इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इक्वेशन नंबर 4 हमने लिखी थी ऊपर। यस, अभी प्रूव किया था हमने AN। यस सर। अगर AN स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है यानी कि 5 4 3 2 1, तो इसका मैं रेसिप्रोकल अगर कर दूं तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इंक्रीजिंग। यस।
तो their reciprocals 1 by ans are in strictly increasing order. तो यानी कि 1 by an क्या हो जाएगा, इसकी जो सीक्वेंस बनेगी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। बिल्कुल। अब gn क्या है, कांस्टेंट है। gn तो Yes, सारे sir. के सारे क्या है, सेम है। तो एक कांस्टेंट नंबर और a by n क्या है, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब h by hn सीरीज क्या हो जाएगी, hn स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। क्लियर हो गया सबको? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको तो भूल जाओ। और 1 बाय an क्या है, an डिक्रीजिंग है, तो 1 बाय an क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो 1 बाय an इंक्रीजिंग है, तो hn भी क्या हो गया, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई स्टूडेंट्स। तो इंक्रीजिंग का मतलब है कि ये मेरा h1 है, ये मेरा h2 है, ये मेरा h3 है, ये मेरा h4 है, ये इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस आती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन करके आपको बड़ा मजा आया होगा और बहुत Yes, sir. सारे कंसेप्ट आपने सीखे Yes, हैं। sir. तो नॉर्मल क्लासेस में ये कंसेप्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ हमें एनसीईआरटी का सिलेबस कराना है, सीबीएसई कराना है, वहाँ इस तरीके की डिस्कशंस और ये सब नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं आपको लाइफ में, लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करनी है, तो दैट वी कैन डू हियर। तो स्टूडेंट्स मैथ्स क्लास में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. फिजिक्स और केमिस्ट्री